Hello students, this is GDAC again with one very interesting series of revision for you, right? As we have said that we will cover all of your grammatical concept in one revision series of grammar, correct? One series is of PYQ, which is along with this series would be there, right, for more practices, correct? So I have said that we will cover all of your revision parts and the practice papers of all years, correct? So in the same part we have come up with one more revision series of grammatically concept of part of speech, which is verb. Hope you know that we have covered noun and pronoun earlier, right? I hope you have understood them with the help of examples, definitions, rules, comparisons, right? Relations, all I have discussed. Similarly, we will cover verb, as well. And I have said to you that what would be the right method to do all of those revisions of grammatically concepts, that you need to understand the revision series of us with the video and then solve it out some 10 to 15 questions approx, right? Simple or mix of kind of from your books, okay? So that you can just apply the revised part concepts and you can have a right learning and practice of the same, correct? So this is one thing. Second important thing this is this, that the form fillings is out, right? You need to fill up your forms accurately. If you found any problems in the form filling, you can connect us in the online and offline manner. The details are shown below, right? Contact numbers are shown below, right? If you found difficult the learning means the practice and the revisions, right? And you want to utilize your last 2 months for the some coaching support or crash course kind of support, we can help you out in an online and offline manner again, right? You can again contact us in the given details, and we can help you out on the same, correct? Okay, this second thing is this, that timetable I have number of times I have given you instruction that timetable you need to create, correct? So in timetable you can cover up all of your topics and all of your all of your practice parts as well, right? Both of the things need to be simultaneously get covered, right? So that you can practice all of the grammatical concept and you can revise all of the grammar topics as well, okay? Okay, so this is how thing is, correct? Now let's start this revision topic, verb, right? I have shared all of the instructions to you, so please check it out and let's revise this verb topic, okay? We will learn all of the tips, tricks and techniques, basic to advanced, each and everything we will cover up over there, right? Okay. Yeah. So definition of a verb. As we know, students, that verb is a part of speech, correct? Part of speech. So part of speech, we know there are 8 part of speech in grammar, correct? 8. Out of those 8, verb is the most important one. Why so? Because verb shows the action, right? The action, that means action. Action or action words.
ठीक है, right? So with those words which help us to create one sentence, right, is verb. That means obviously they see how it is. Communication is the thing that we need to communicate with someone, ठीक है. We can communicate with someone with the help of what? Sentence, ठीक है. Sentence जो होता है हमारा can be created with the help of subject plus predicate, right? Right, predicate. सब्जेक्ट में नाउन एंड प्रोनाउन आते हैं आपके, राइट. प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है. तो नाउन प्रोनाउन वर्ब तो यहाँ आ गया. ऑब्जेक्ट जो होता है वहां पे आपका एडजेक्टिव आ जाता है, राइट. एडवर्ब भी आ जाता है, एडवर्ब, सॉरी, ठीक है, एडवर्ब आ जाता है, प्रपोजिशन आ जाता है, कंजंक्शन आ जाता है, इंटरजेक्शन आ जाता है, राइट. तो कितने हो गए? 1 2 3, राइट. 4 5 6 7 एंड 8 हो गए 8, ठीक है. These 8 are the required part of speech with the help of which we can create one sentence and meaningful sentence, and with the help of that sentence we can connect to someone and we can communicate to someone. ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश का पर्पस होता है, ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज जिसको बोल देते हैं हम, राइट, दिस, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम व्हाट वी विल बी डूइंग कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए होती है वर्ब की, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस ही नहीं हो पाएगा, राइट, कंप्लीट. नाउन ना हो जाएगा. प्रोनाउन ना हो जाएगा. एडजेक्टिव ना हो जाएगा. एडवर्ब ना हो जाएगा, राइट. कंजंक्शंस ना हो जाएगा. इंटरजेक्शंस ना हो जाएगा. प्रपोजिशन भी ना हो जाएगा. बट वर्ब ना हो तो सेंटेंस नहीं बन सकता, राइट. बिकॉज वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, राइट, कुछ ना कुछ काम या क्रिया, राइट. और अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, वर्ब नहीं है, दैट मीन्स कुछ हो ही नहीं रहा है. कुछ हो नहीं रहा है तो फिर आप बोल क्या रहे हो, बता क्या रहे हो, राइट. व्हाट यू वांट टू से विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस. कुछ तो हो रहा होगा ना जिसको बता रहे होगे, तो वो कुछ होना ही इज कॉल्ड एज एक्शन, एंड एक्शन वर्ड्स एंड दैट इज कॉल्ड एज verb. ठीक है, okay, that's how the importance of verb is. Okay, now check. Yeah, a verb is a word that shows action, state or possession. ठीक है, a verb is a word that shows action, state or possession. ठीक है, possession क्या हुआ इसका मीनिंग? एक्शन तो अभी बताया, कोई भी जो वर्क होता है वो. वर्क मीन्स टास्क, ओके. राइट, वर्क, टास्क, एक्टिविटी, कुछ भी, और एक्शन, एनीथिंग वी कैन से. एक ये होते हैं जैसे फॉर एन एग्जांपल प्लेज, राइट, प्लेज, राइट, ड्राइव, ईटिंग, स्लीपिंग, राइट, जंपिंग, दीज आर द वंस, राइट. स्टेट, एक वन होता है स्टेट. स्टेट मतलब आप किसी पोजीशन में हो, राइट, किसी पोजीशन में, तो उस लाइक दिस, यहाँ देखो एक्शन हो गया ना. दिस इज स्टेट यानी हैप्पी. किस पोजीशन में हो आप? हैप्पी पोजीशन में हो. यानी पोजीशन का मतलब है इमोशन, राइट. इमोशनल पोजीशन यानी इमोशनल कंडीशन, इमोशनल बीइंग, इमोशनल सिचुएशन. दैट मीन्स आपको कैसा लग रहा है, राइट, राइट. दैट इज कॉल्ड एज दिस, राइट. ओके, सो दिस इज सेकेंड. थर्ड इज पोजेशन. पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज का होना आपके पास. तो हमने कल भी पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो उसमें भी ये पार्ट आया था, पोजेशन. पोजेशन का मतलब होता है किसी का, किसी चीज को आपके पास होना. तो ही हैज ए कार, ये भी एक तरह का वर्ब है, हैज, यानी हैज मीन्स पॉजेसिव वर्ब है ये. ठीक है, इसको वन बाय वन हम डिस्क्रिप्शन के साथ वन बाय वन हम चेक करेंगे. In what? In further slides. ठीक है, so this is how the verb is. ठीक है,
कितना क्या वर्ब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है वर्ब का, किस काइंड ऑफ की वर्ब्स होती हैं, दैट वी हैव कवर्ड इन दिस स्लाइड. देन द नेक्स्ट स्लाइड वुड बी काइंड ऑफ सी एक्शन काइंड्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट इज मेन वर्ब. ठीक है, सो सॉरी. मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब मेन वर्ब क्या शो करता है, इसलिए तो इसको मेन वर्ब कहते हैं. एक्शन जो होता है वो मेन होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा टास्क, और वो जो टास्क हो रहा है वही मेन होता है डियर, इसलिए उसको मेन कह देते हैं. शोज व्हाट समवन और समथिंग डज. ठीक है, मतलब कोई कुछ कर रहा है, राइट, या फिर कुछ हो रहा है, दोनों थिंग्स. मतलब क्या हुआ, कोई कुछ कर रहा है, कोई का मतलब समवन, और कुछ कर रहा है क्या मतलब हो गया कुछ हो रहा है. दैट्स जैसे लाइक कोई कर रहा है का मतलब हो गया समवन इज प्लेइंग, समवन इज ईटिंग, समवन इज राइटिंग ऑन बोर्ड, राइट राइट ओके, बोर्ड नहीं, राइट दिस. सेकंड हो जाता है समथिंग. समथिंग मतलब जैसे हवा चल रही है, राइट, एयर, यानी इट्स ब्रीजिंग, राइट, इट्स ब्रीजिंग. तो ब्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई तो चला नहीं रहा है हवा, कोई नहीं चला रहा है, कोई बंदा नहीं चला रहा है हवा, और हवा अपने आप चल रही है. सन इज शाइनिंग, कोई सन को नहीं शाइन करवा रहा है, राइट, सन खुद से शाइन कर रहा है. ठीक है ना, दिस इज हाउ, है ना, that's how. So this is how the action verbs are. Now इसके एग्जांपल देखो, इसमें I will add some examples. Run, write, eat. Run, दौड़ना, write, write like लिखना, right, eat, sing, jump, dance. ये सब क्या हो गए एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, यानी एक्शन और मेन वर्ब. लेकिन ये समवन वाले हो गए, मतलब शोज व्हाट समवन डज, कोई कर रहा है, ये तो कोई करता है ना. जंपिंग कोई करता है, ईटिंग कोई करता है, रनिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांस, ये सब कुछ कोई करता है. लेकिन समथिंग, समथिंग यानी कौन सी चीज, कोई चीज कैसे खुद से हो रही, जैसे शाइनिंग, शाइनिंग, राइट, लाइटनिंग. देखो क्लाउड्स में शाइनिंग होती है, लाइटनिंग होती है, सन शाइन्स, मून शाइन्स, स्टार शाइन्स. ये कोई नहीं करता, ये होता है बस अपने आप, राइट. दैट इज हाउ, इट्स अ बिग प्रोसेस, राइट, बिग फिनोमिनन, है ना, दैट्स हाउ. सो इसलिए उसको कहते हैं समथिंग डज, यानी कोई कर रहा है कुछ और कुछ हो रहा है. सो दोनों केसेस आपके वर्ब में कंसीडर होते हैं. ओके, दिस इज हाउ. देन उसके बाद, राइट, या एग्जाम्पल्स इसके गिवन है. द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. चिल्ड्रन पार्क में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं. ये क्या हो गया, कोई कर रहा है. दैट मीन्स आपका समवन इज डूइंग समथिंग, ये वो है. शी राइट्स नीटली, दिस इज अगेन द सेम. इसमें एक और ऐड कर लो एग्जाम्पल, सन शाइन्स इन द sky. Sun shines in the sky. ठीक है, सन शाइन कर रहा है स्काई में, सन शाइन कर रहा है, तो फिर यहाँ कंसिडरेशन डिफरेंट है. दैट मीन्स यहाँ पर आपको कोई भी सन को शाइन नहीं करा रहा है, सन को शाइन करा नहीं रहा है, लाइट नहीं दे रहा है. दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना, यूनिवर्सल फैक्ट्स, ट्रुथ्स, राइट. दिस इज व्हाई ये समथिंग में आएगा, ना कि समवन में आएगा. ओके, सो दिस इज हाउ द डिफरेंसेस आर. ठीक है, तो मैंने क्या चीज को एम्फसाइज किया कि वहां पे दो काइंड ऑफ की थिंग्स हो सकती है, ना कि एक. ठीक है, ओके. दिस सेकंड आया, लिंकिंग वर्ब्स shows a state of being, they connect the subject information about it. ठीक है, ओके. दिस दैट मीन्स लिंकिंग वर्ब्स होते हैं दोज वर्ब्स which shows a state of being. Let me tell you, right,
shows a state of being, यानी किसी की स्टेट बताते हैं. They connect the subject to information about it. ये क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट का कनेक्शन बताते हैं इंफॉर्मेशन से, राइट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल से भी आपको बेटर समझ में आएगा. एम इज आर वॉज वर बीन बीइंग सीम बिकम, राइट? ओके, दिस इज हाउ. दैट मीन्स आपको ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं, राइट? ऐसे एग्जाम्पल्स कंसीडर करने हैं, राइट? जिसमें आपका these kind of words use होते हो, जैसे am is are was were been being seem and become, right? like he is tall, ठीक है? is क्या हो रहा है चेक करो. he क्या है? सब्जेक्ट है. ओके, सब्जेक्ट. tall क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन है. क्या है? इंफॉर्मेशन, राइट? एंड इज एक वर्ब है. इज जो वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन से, राइट? ही इज टॉल मतलब वो टॉल है. वो यानी ही. टॉल, टॉल है. टॉल है मतलब लंबा है. वह टॉल है, लंबा है. ठीक है, दिस इज हाउ. देन कम्स अप दे वर टायर्ड. ओके, दे वर टायर्ड. दे यानी वे थके हुए हैं. थे या थे वर, ठीक है? दे वर टायर्ड. ओके, दिस इज हाउ. ठीक है, टिप क्या हुआ? इफ यू कैन रिप्लेस द वर्ब विद, इट्स अ लिंकिंग वर्ब. ही इज टॉल, ही इक्वल्स टू टॉल, राइट? दैट्स ऑल. मतलब इक्वल टू से हम रिप्लेस कर सकते हैं लिंकिंग वर्ब्स को. मतलब वो उसके बराबर. बराबर का मतलब उसका मतलब वो होता है. दैट मीन्स दैट से ही इज टॉल, तो वो बोल रहा है सेंटेंस में वह लंबा है. ठीक है, वह. तो इसको अगर इक्वल टू से रिप्लेस करो सपोज इज को, इसका क्या मतलब? वो वह किसके बराबर है? लंबे के बराबर. मतलब लंबे के समान. बराबर का मतलब होता है यहाँ पे समान. दैट्स वाई ना, ये जो ग्रामर होती है इंग्लिश और हिंदी की, कि आपको वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग यूज करना होता है, राइट? दिस इज हाउ. ठीक है, दिस. ओके, सो दिस इज बीन कवर्ड. नेक्स्ट, थर्ड इज हेल्पिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? हेल्पिंग इन ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है डियर? What we have covered earlier, helping an auxiliary verb used with main verbs to form tenses, questions or negatives, right? That means used with main verbs to form tenses, questions or negatives. That means used with main verbs. यूज होते हैं मेन वर्ब्स के साथ, जो मेन वर्ब हम जानते हैं. देखो जस्ट ए सेकेंड. मेन वर्ब वी नो, एक्शन वर्ब थे जो, ठीक है, उसके साथ यूज होते हैं. और एक चीज और देखना, मेन वर्ब्स, मेन वर्ब. ओके, सेकंड थिंग ये देखना यहाँ पे क्या लिखा है? हेल्पिंग. हेल्प करेंगे कैसे? यूज विद मेन वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस, क्वेश्चंस और नेगेटिव टेंसेस, सेंटेंसेस. टेंस चेंज करने में, क्वेश्चंस बनाने में यानी इंटरोगेटिव्स, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में. ठीक है, लेट्स चेक और विद द एग्जांपल. फर्स्टली, एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड विल शैल कैन मे मस्ट शुड कुड माइट. ओके, we know these are the helping verbs, right? या फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, या फिर these are the auxiliary verbs. क्या है? auxiliary verbs, right? okay, this. तो इसके अकॉर्डिंग करोगे तो क्या हुआ आपका? इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्पल्स को अगर चेक करते हैं तो what it would be? she is running, right? she is running. they have finished homework. I can swim, right? ना, this. okay, these are the simple examples जो कि हमें मालूम है. इन एग्जाम्पल्स के बेस पे हम क्या पता करते हैं, क्या हमें आइडिया हो जाता है डियर, दैट दैट शी इज रनिंग. लाइक सपोज एक सेंटेंस है शी इज रनिंग, यानी वह दौड़ रही है. ठीक है, अब देखना मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? रन.
था ना वहां पे भी, ओके ठीक है। शी है सब्जेक्ट ऑब्वियसली, इनको कनेक्ट किया यूज विद, तो यूज किया गया राइट किससे, रनिंग के साथ, मेन वर्ब के साथ, इज रनिंग, शी इज रनिंग, सब्जेक्ट तो शी हो गया, सिंगुलर हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। इज अकॉर्डिंग में आ गया, अकॉर्डेंस से आ गया उसके कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन रनिंग, रनिंग आ गया हमारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया, तो क्या बना एक्चुअली, शी इज रनिंग मतलब वो दौड़ रही, लेकिन इसमें बना क्या, इसमें देखो ध्यान से, इसमें बना टेंस, हमारा टेंस, टेंस बना कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट, इज रनिंग, इसीलिए यहां पर ये जरूरी होता है, राइट। दैट्स हाउ ये प्रेजेंट टेंस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया ना, दैट्स हाउ। दे हैव फिनिश्ड होमवर्क्स, दे हैव फिनिश्ड होमवर्क्स, इसमें आपको दो तरह के सेंटेंस नहीं दिए, मैं उसको करके बता देता हूं आपको। दे हैव फिनिश्ड होमवर्क, दे हैव नॉट, ओके नॉट, नॉट फिनिश्ड होमवर्क्स, ठीक है, है, देखो इन्होंने बोला था साफ साफ कि हमारा टेंसेस बनते हैं, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स बनते हैं। टेंस बन गया शी इज रनिंग, ठीक है, दे हैव फिनिश्ड होमवर्क, ये भी बन गया, देखो है फिनिश होता है मेन वर्ब, हैव लगा दिया, फिनिश थर्ड फॉर्म लगाया, क्या बना टेंस, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट बना, राइट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन इसका क्वेश्चन मार्क नहीं बनाया, हम इसका क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव बना देते, पहले नेगेटिव बनाते हैं, दे हैव नॉट फिनिश्ड होमवर्क्स, ठीक है, दे हैव नॉट फिनिश्ड होमवर्क, हैव नॉट आया ना, हैव नॉट कब आया, जब हमने हैव लगाया उसके साथ, दैट्स हाउ द एग्जांपल इज, इट इज ऑफ क्वेश्चन। सेकंड, आई कैन स्विम, इसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है, कैन आई स्विम, आई स्विम, क्वेश्चन मार्क, कैन आई स्विम, अब चेक करो, आई स्विम हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया सब्जेक्ट इज गिवन एज एन आई, कैन हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, हमने लगाया आई कैन स्विम पॉजिटिव सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस बन गया हमारा टेंस के साथ प्रेजेंट का, ठीक है। हम उसको क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, राइट, कैन आई स्विम, क्वेश्चन मार्क के लिए पता है आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले निकालते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो कैन आई स्विम, क्या ये क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन सेंटेंस नहीं बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, दैट मींस आपका ये कंसीडरेशन हो गया कि राइट, कि आपका इसमें टेंस, क्वेश्चन मार्क एंड नेगेटिव तीनों काइंड ऑफ के सेंटेंसेस वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये तीनों के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, जिससे पता चल जाता है हम टेंस भी बना सकते हैं, हम उससे क्वेश्चन वर्ड्स भी क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, और हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ओके दिस, ठीक है, ओके। देन ट्रांजिटिव वर्ब्स डियर, ट्रांजिटिव, आपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा ट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जहां पे हमें ऑब्जेक्ट के लिए नीड होती है, राइट, जैसे क्या होता है, नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, मतलब एक ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है या ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट पे रिसीविंग होती है सब्जेक्ट के थ्रू, राइट, ओके, ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए सेंटेंस का, लाइक ही प्लेज, एक हो जाएगा ना, ही प्लेज, सपोज देखो एग्जांपल लेते हैं, उससे कंफर्म होता है, कंफर्म मीन चेक होता है, राइट, है ना, ही प्लेज, ओके, ही प्लेज का मतलब हुआ ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, वन इज दिस एंड ही प्लेज इज वन, ही प्लेज का मतलब हुआ वह खेलता है, क्या खेलता है ये बताया है? नहीं बताया, क्लियर नहीं है, दैट मीन्स आपको ये क्वेश्चन जरूर रह जाएगा माइंड में, वो खेलता है लेकिन क्या खेलता है नहीं पता, वी डोंट नो। नाउ इन द सेकंड सेंटेंस ही प्लेज क्रिकेट, दैट मीन्स राइट, दैट आपको ये भी पता है कि वो खेलता तो है, लेकिन क्या खेलता है, वो खेलता है
क्रिकेट, यानी आपके माइंड से क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। वो खेलता है, क्या खेलता है नहीं मालूम, वो खेलता है क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, राइट। दैट मीन्स आपको क्रिकेट का आइडिया है, दैट मीन्स आपको आइडिया है कि आपका कौन सा सेंटेंस में क्या क्या क्वेश्चन एंड क्या क्या आपका ऑब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट अलोंग विद द सब्जेक्ट, ठीक है, राइट। सो इन दिस वे यू नो that it would be helpful for you that to find out the object in such kind of sentence, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर आइडिया है तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है, आपको आंसर भी साथ में चलता है उसका, राइट, मिल जाता है, राइट। दिस इज नाउ शी रोट ए लेटर, ऑब्जेक्ट एंड लेटर, इसका क्या मतलब हुआ बताओ। शी, इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हुआ ना, ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेस हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ये। अब दूसरा चेक करो, शी रोट ए लेटर, शी क्या हुआ सब्जेक्ट, रोट क्या हुआ वर्ब, ए और लेटर ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमें जब है तो शी रोट, अब चेक करो शी रोट, शी देखो शी रोट, ओके, शी रोट और शी रोट ए लेटर, दोनों में क्या डिफरेंस है। शी रोट जब बोलेंगे तो माइंड में क्वेश्चन आएगा, वो लिखती है यानी लिखा, उसने लिखा, लेकिन क्या लिखा वी डोंट नो, राइट, 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 हमें नहीं मालूम कि क्या लिखा, राइट, हमें ये नहीं आइडिया है कि क्या लिखा उसने, हमें सिर्फ ये बताया गया कि उसने लिखा, क्या लिखा, आई मीन मेल लिखा, आई मीन उसने लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखा, ऐसे लिखा, राइट, क्या लिखा ये हमें नहीं मालूम, स्टोरी लिखी, माइंड में रह गया ना क्वेश्चन। शी रोट ए लेटर, यानी उसने एक लेटर लिखा, क्या लिखा लेटर लिखा, लेटर लिखा यानी दैट मीन्स इट कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, उसने एक लेटर लिखा, यानी नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ब्स जो कि सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, राइट, दोज वर्ड्स आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स, जो कि सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। दिस देन कम्स अप इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके, ये जस्ट अपोजिट है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव आर लाइक दैट जिसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, दैट मीन्स आपका सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट मीनिंग पजेस करता है, कंप्राइज करता है, दैट लाइक यू नो फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, द बेबी क्राइड, राइट, द बेबी क्राइड, बेबी क्राइड का मतलब क्या होता है, बच्चा रो रहा था या बच्चा रोया, ठीक है, बेबी क्राइड, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं, पूछो क्यों, द बेबी क्या हो गया सब्जेक्ट और क्राइड हो गया वर्ब, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपको इसमें कोई नीड नहीं है, द बेबी क्राइड in the room, the baby cried in the evening, the baby cried in the lab, the baby cried with the mother, the baby cried loudly, ऐसा कोई नीड नहीं है ऑब्जेक्ट की कि हमें ये ना पता चले कि बेबी क्या कर रहा था, बेबी रो रहा था, राइट, रोया, तो इसलिए इसमें आपको कोई नीड नहीं है वो लगाने की कि क्या ऑब्जेक्ट साथ में होगा, राइट, इट इज कंप्लीट, इट इज हैविंग कंप्लीट मीनिंग ऑफ एच, ठीक है, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दिस डियर, द सन राइजेज, सन राइजेज, सन उगता है, ठीक है, सन उगता है, अब सन उगता है, इट इज हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, सन उगने की, जरूरी नहीं है सन ईस्ट में उगता है, सन मॉर्निंग में उगता है, सन धीमे धीमे उगता है, सन बहुत बड़ा उगता है, सनलाइट के साथ उगता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट उसमें साथ राइट अप करने का, राइट, इसमें तो क्या होता है कि इसमें हमें जरूरी नहीं होता ऑब्जेक्ट को ऐड अप करने का, जो कि इसलिए रिक्वायर्ड हो कि आपका मीनिंग सेंटेंस का बना पाए, राइट, ओके, दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस गिवन है वर्ब तक विदाउट ऑब्जेक्ट, वो भी आपको कंप्लीट मीनिंग देता है एक सेंटेंस के फॉर्म में, ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नाउ देखो अब एक और चीज करते हैं,
ओके, ठीक है, फाइन। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दोज वी हैव कवर्ड विद वर्ब डेफिनेशन, है ना, उसका इम्पोर्टेंस, उसका यूसेज, द टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है, कौन कौन से निकले हमारे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, और एक और भी था बीच में, राइट, एक और था विच इज कॉल्ड एज दिस लिंकिंग वर्ब, ठीक है, ठीक है। दीज आर द वंस जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेंटेंस बनाते हैं, टेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, एंड उनका मीनिंग भी बनाते हैं सेंटेंसेस का, है ना, राइट, और हेल्पिंग हेल्पिंग हेल्प भी कराते हैं मेन वर्ब की, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क होते हैं हमारे पास with the help of different different kinds of verbs, ठीक है। So these were the ones. Then comes up one more part on the same, form of verbs. आपको पता होगा फॉर्म क्या होती है वर्ब की। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज, वर्ब में दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ब जैसे डेफिनेशन हो गया, यूज हो गया, फिर आता है काइंड्स, और उसके बाद आता है फॉर्म्स। काइंड्स आर वन थिंग और फॉर्म्स आर वन थिंग, ठीक है। काइंड्स में आपकी डिफरेंट यूसेज होती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के वर्ब्स की। फॉर्म्स डिफरेंट होता है। फॉर्म्स क्या होता है, एक ही वर्ब, अगर सपोज ये मेन वर्ब है आपका, सपोज लेट्स से ये आपका है मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब जो है आपके, इनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी, मतलब सब वर्ड सेम रहेगा बट यू नो उसकी फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, ठीक है, दिस। और जो हमारे काइंड ऑफ वर्ब्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है कि आपके जो मेन फॉर्म, जो मेन या वर्ब के मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ड्स हैं जो वर्ब के, वही चेंज हो जाते हैं, यानी दूसरे हो जाते हैं। जैसे किसी में इज एम आर होता है, किसी में प्ले रन दीज होते हैं, किसी में हैज होता है, किसी में हैप्पी होता है, राइट राइट ना, दिस इज हाउ। तो इस वे से आपके पोजीशन, आपके एक्शन और आपके जो स्टेट होती है उसके बेस पे वर्ड्स ही चेंज हो जाएंगे, यानी वर्ब्स ही चेंज हो जाते हैं, ओके, ठीक है। या देन इन द फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपके वर्ड सेम रहेंगे, उन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज करते हैं। हाउ इट वुड बी, लेट्स जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट, ठीक है, ओके। क्या, first is base form. Suppose base form is of number of words like go, write, eat and play, है ना, these are the simple verbs, we know that main verbs है ना ये, ठीक है। इसका past form चेक करेंगे तो past form इसका हो जाएगा went, go का went हो जाता है ना, second form, ओके। write का wrote हो जाता है, eat का ate हो जाता है, राइट, eat का ate, write का wrote, राइट, और go का went, और play का played, ठीक है। ये आपको ना लर्न करने पड़ते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड टू लर्न। ये अपने आप से नहीं आएंगे, ये आएंगे लर्न करने से। कुछ अपने आप से आ जाएंगे, इजी होते हैं, कुछ लर्न करने से आएंगे, और कुछ लर्न करने से भी नहीं आएंगे, वो प्रैक्टिस करने से आते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ। देन कम्स अप पास्ट पार्टिसिपल डियर। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, राइट, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म, राइट। उसमें क्या होता है आपका, थर्ड फॉर्म होता है किसी भी वर्ड का। गो का हो जाता है गॉन, राइट का हो जाता है रिटन, ईट का इटन, प्ले का प्लेड, ठीक है। अब चेक करो, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन, ईट एट ईटन, प्ले प्लेड प्लेड। अब प्लेड और प्लेड दोनों सेम है, ठीक है, सेम, इट हैपेंस, ठीक है, ऐसा होता है। कुछ वर्ड्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म वी कैन से, देखो इसको ना सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं सेकेंड फॉर्म, इसको कहते हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं, ओके। सो पास्ट पार्टिसिपल, इसके पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो ओके, ऐसा होता है। जैसे प्लेट का हो गया, रन का हो गया, राइट, और देखो किसका हो गया, और आपका देयर आर मल्टीपल वर्ड्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, ईडी वाले, ठीक है। किसी किसी के आपको जैसे रीड हो गया, रीड, राइट, एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर, एक्सेप्शंस बताते रहा हूँ, एक दो
रीड का रीड, रेड और रीड होता है, ठीक है। रीड की जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन सेकंड जो फॉर्म है आपका पास्ट फॉर्म, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। इसको हम रीड नहीं बोलते, इसको हम रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड। आई रेड ए लेटर, आई रेड ए लेटर, ही रेड ए लेटर, दे रेड ए लेटर, ठीक है। मतलब उन्होंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, उसने पढ़ा, ठीक है, दिस। और रीड का मतलब होता है पढ़ना, मतलब पढ़ता हूँ, राइट, फर्स्ट फॉर्म। और रीड थर्ड फॉर्म, यानी उसने पढ़ा, यानी पढ़ चुका, वो पढ़ चुका है, ठीक है। तो रीड, रीड, रेड, रीड, लिखने में नहीं समझ में आएगा, ये स्पेलिंग में आपका प्रोनाउंसिएशन में समझ में आता है, राइट। देन कम्स द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। गोइंग, राइटिंग, ईटिंग एंड प्लेइंग, फॉर दीज वर्ड्स सिमिलरली, और सब वर्ड्स की अलग अलग होती हैं। मेजरली हम क्या करते हैं, हर वर्ड में आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। दिस इज हाउ इट इज, राइट। ओके, दिस you need to. Okay, so I hope you have found it out, forms of verb, base form, past participle, present participle, ठीक है। चारों हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद रेगुलर वर्ब्स एडेड, प्ले और प्लेड। क्या हो गया? प्ले एंड प्लेड। रेगुलर वर्ब्स ऐड होके क्या हो गए आपके, किसी किसी में ईडी ऐड होता है। क्या ऐड होता है? ईडी। प्ले और प्लेड, प्ले का हो जाएगा प्लेड, ठीक है। उसके बाद आपका इररेगुलर वर्ब्स में चेंज हो गया फॉर्म, तो गो, वांट, गॉन। क्या हो गया तीनों का? गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है। दैट मीन्स दैट मीन्स आपका इरेगुलर वर्ब्स में कोई भी वर्ब्स जब होती हैं उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है, तो गो, वेंट, गॉन हो जाता है, राइट। मतलब उनके इस फॉर्म के वर्ड्स आ जाते हैं, न्यू वर्ड्स, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उनमें ना ईडी ऐड हो जाता है, ठीक है, यानी प्ले का प्लेड हो जाएगा। और क्या हो सकता है? देखो, जंप का जंप्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? और होगा, और आपका हो जाएगा, देर आर डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो, एक है रीड, रीड है ना, तो वो रीड 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 वो इसमें नहीं आएगा। और एक आपका होता है टुक, टेक हो गया, टेक, टेक का टुक, टेकन, ठीक है। तो दैट मीन्स वो इरेगुलर वर्ब है। एक ये भी होती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर, ये इसके पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है ना। ये रेगुलर इरेगुलर इसी के पार्ट्स होते हैं, जो इसी में कंप्राइज्ड होते हैं, इन्हीं का अप्लाई करके ही बनती हैं हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म एंड द फर्स्ट फॉर्म्स, ठीक है। ये इसी के बेस से बनती हैं, इसी के एप्लीकेशन से बनती हैं, ठीक है। तो वो तीनों का कॉन्सेप्ट उन दोनों के कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है। ओके, दिस इज हाउ। सो सी, ये हमने 3 to 4 की हैं एग्जाम्पल्स, देयर आर नंबर ऑफ, ओके। आप स्टूडेंट हो, आप लोगों को तो बहुत सारे करने होते हैं वर्ब्स, कैसे, कितने करने होते हैं आप, यू कैन अंडरस्टैंड, मिनिमम 500 तो करने ही होंगे वर्ब्स, ठीक है, जिसकी आपको लर्निंग ही कर सकते हो। आई हैव सेड, कुछ इजी होते हैं, कुछ अपने आप से आ जाते हैं, कुछ लर्निंग से आते हैं, और कुछ लर्निंग से भी नहीं आते, कुछ प्रैक्टिस करने से आते हैं, ओके। जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करोगे सेंटेंसेस में, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ देयर, यूज, ठीक है, ठीक है। दिस इज हाउ। देन कम्स अप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसलिए वर्ब्स निकाल लो अपना डिफरेंट डिफरेंट बुक से। आई विल प्रोवाइड यू नंबर ऑफ वर्ब्स एज वेल, लिस्ट दे देंगे हम आपको, राइट। एंड 100 200 करके करके वर्ड्स दे देंगे, मतलब कपल ऑफ करके देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। उससे आप अपने रजिस्टर में नोट करो, उनको रेगुलरली लर्न करो, यूज करो, तब जाके आपको थोड़े थोड़े टाइम में उनकी प्रैक्टिस होगी, बिकॉज स्पेलिंग्स भी कभी कभी टफ हो सकती होती हैं एक दो वर्ड्स की, ठीक है। दिस, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी एक टॉपिक है रिलेटेड टू वर्ब, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, स्पेसिफिक टॉपिक बनाया हुआ है, बट है सेम ही थिंग है कॉन्सेप्ट वाइज। देखो, अब वर्ब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब चेक इट आउट व्हाट इट इज, ठीक है, क्या होता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है और एग्रीमेंट है। दैट मीन्स सब्जेक्ट है, जानते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो गए, इन दोनों का कनेक्शन है कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस, और वो क्या बेस पे आता है? एग्रीमेंट के बेस पे, राइट। दैट मीन्स
आपको सब्जेक्ट्स और वर्ब कैसे अप्लाई करते हैं किसी सेंटेंस में टू गिव इट आउट ए राइट मीनिंगफुल सेंटेंस, उसका कहीं ना कहीं कोई कंडीशंस के बेस पे एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कैसे होता है, हो सकता है समझ ना आ रहा हो अभी, अब आएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड कंडीशन वंस आई विल टेल। ठीक है, वर्ड से नहीं समझ में आ रहा होगा एग्रीमेंट, बट वो वही चीजें होती है नॉर्मल जो आपने पहले से पढ़ी हुई है टेंसेस में। लेट्स चेक, तब आ जाएगा। ठीक है, अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। देखो बहुत सिंपल सा चीज है, देखो फॉर एन एग्जाम्पल वी टेक वन एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, नाउ अब बताना, पहले मुझे बताओ इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है? इज इट व्यूएबल? दिख रहा है आपको? या राइट। ठीक है, इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, नॉर्मल सेंटेंस है। ओके, अब ध्यान से देखो, ही हो गया सब्जेक्ट आपका, क्या हो गया? ही है सब्जेक्ट। ओके, क्या है ही? सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है? प्रोनाउन। पहले तो ये हो गया नाउन नहीं है, है ना, ये नाउन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? प्रोनाउन है। ओके, फिर क्या है? सिंगुलर भी तो है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना, जैसे प्ले, प्ले आएगा वर्ब, प्ले आएगा किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग ना। ही कौन है? सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब जो आएगा तो प्लेज हो जाता है, ऐसे यस ऐड हो जाता है ना, रूल है। सो प्लेज लगा दिया, देन फुटबॉल। तो दिस इज द थिंग ओनली। क्या मुझे बताओ, ये आपको रूल पहले से नहीं पता है कि ही यानी जो हमारा नाउन सब्जेक्ट है उसका नाउन, दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन दोनों का, वो चेक करना है, नंबर चेक करना है उसका, एंड उसका पर्सन चेक करना है। नंबर चेक करने का मतलब ये होता है आपका कि आप सिंगुलर हो प्लूरल हो। ठीक है, ये नंबर हो गया चेक, सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही प्लेज आएगा, और अगर यहाँ दे होता तो प्ले होता ना। तो ये तो नई चीज नहीं है आपके लिए, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू प्ले होना। दे के साथ प्ले आता है, वी नो प्लूरल के साथ। दिस इज द ओनली थिंग इट इज डिस्क्राइब्ड ओवर देयर, राइट। और उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका दे, दैट मीन्स उसके बाद पर्सन। पर्सन हो गया क्या? अब अगर नाउन होता तो राम बोला जाता, राम, नाउन में राम, राम। नाउन का रिप्लेस करके प्रोनाउन कर दिया, ही कर दिया। ही, इज, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। कौन से किस केस में? पर्सन वाइज ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है ना, आई एंड यू आता है। ठीक है, आई एंड वी, सॉरी। सेकेंड में यू आता है, और थर्ड में ही, शी, इट, दे, ये सब आते हैं। ठीक है ना, तो अब ये कौन सा हुआ? ये थर्ड पर्सन है, ही। तो थर्ड पर्सन, समटाइम्स आप पर्सन भी चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। कैसे बताओ? जैसे अगर पर्सन यहाँ पे यू होता है, यू, ठीक है, यू, तो यू, और आपको पता है यू और आई और वी ये तीनों एक्सेप्शनल रहते हैं। किसी किसी टेंसेस के केस में इनको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, प्लूरल बना दोगे तो उनका प्लूरल वाला केस आएगा ना, राइट। प्लूरल वाली आई प्ले, जैसे आई को प्लूरल मानते हैं, राइट। तो आई प्ले, आई प्लेज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आई प्लेज नहीं आएगा, राइट। ही प्लेज और आई प्ले, दिस इज हाउ। ठीक है, वी प्ले भी आएगा, वी भी प्लूरल है, लेकिन वी तो प्लूरल होता ही है, हम मीन्स मोर देन वन। आई प्लूरल नहीं होता है, आई सिंगुलर होता है, सिंगल पर्सन, बट उसको प्लूरल ही मान के करते हैं रूल। ठीक है, तो आई प्ले, तो दैट इज वाई इट हैपेंस कि समटाइम्स नंबर्स और समटाइम पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं, और उसके बेस पे हम अप्लाई करते हैं कि कौन सा आपका वर्ब अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो वर्ब अप्लाई नंबर और सब्जेक्ट के, नंबर और पर्सन के बेस पे होता है, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। दैट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में कोई कंडीशन चल रही है ना, कि ओके मैं अगर सब्जेक्ट बोलते हैं कि अगर मैं आपका सिंगुलर रहूंगा तो सिंगुलर के बेस पे हमारी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सेज के सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल के बेस पे वर्ब आएगी। दैट इज हाउ आपकी दोनों चीजें एक दूसरे के कंडीशन के बेस पे वर्क करती हैं। ठीक है, दिस इज हाउ। सो ही, शी, इट प्लेज हो गया ना, आई, यू, वी, दे प्ले। देखो
ही शी इट दे, ये क्या हो गए प्ले, और ये होते कौन से, थर्ड पर्सन हो गया, पर्सन आ गया, आई यू वी दे, आई और वी क्या हो गए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, यू हो सेकंड पर्सन और दे हो गया थर्ड पर्सन। तीनों के लिए, तीनों पर्सन है, तीनों पर्सन के लिए यू वी यूज दे, नो प्ले, प्ले मीन्स सो सॉरी, राइट, दैट मीन्स आपका, आप वी हैव चेक्ड दैट वी यूज प्ले, प्ले का मतलब यू नो, प्ले का मतलब क्या हुआ, प्लूरल वर्ब, हाँ प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब है, तो उस प्लूरल वर्ब का किस बेस पे आई है प्लूरल वर्ब, कंडीशन के बेस पे। कंडीशन कौन सी है, सब्जेक्ट नाउन हो तो, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन, नाउन में तो पर्सन होगा नहीं ना, नाउन में तो नंबर होगा, राइट, सिंगुलर और प्लूरल, और प्रोनाउन जब हो जाएगा तो वहां पे दोनों हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल, धी और दे, राइट, एंड पर्सन, पर्सन हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन आई जो होता है ना, आई और यू, आई भी सिंगुलर होता है, यू भी सिंगुलर, मानते प्लूरल है, दोनों को प्लूरल के बेस पे लगाएंगे, दैट इज वाई कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता होता है, जो ये होता है कि आपका पर्सन अगर चेंज हो जा रहा है तो आपका उसके बेस पे, राइट, उसके बेस पे, राइट, आपको वर्ब अप्लाई करनी होती है, ठीक है, सो दिस इज हाउ प्ले वुड बी देयर। देन कम्स सम, शी राइट्स ए लेटर, शी राइट ए लेटर, ठीक है, शी राइट्स ए लेटर और शी राइट ए लेटर, बताओ कौन सा वाला करेक्ट है इसमें, इसमें हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट, शी राइट्स ए लेटर, ना कि सेकंड वन, दिस इज द एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज यही थी, बताओ कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, फर्स्ट वन इज करेक्ट, शी राइट्स ए लेटर, राइट, ना कि शी राइट ए लेटर, राइट ए लेटर नहीं होगा, दे राइट ए लेटर होगा, आई राइट ए लेटर होगा, यू राइट ए लेटर होगा, शी राइट्स ए लेटर होगा, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द कॉमन कंफ्यूजन, जो हमने अभी मैंने बोला ना कंफ्यूज हो सकते हो, वो ही पार्ट्स है, क्या क्या होता है करेक्ट जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर रहे, ठीक है, वो क्या हो सकता है डियर, देखो कॉमन कंफ्यूजन्स क्या होते हैं जो आपके आ जाते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे जो अभी अभी आया था हमारा यू और आई, यू और आई सिंगुलर होता है लेकिन उनको मानते प्लूरल है ग्रामर के रूल से, दैट्स वाई उनके साथ, दोनों के साथ प्ले वर्ब यूज होगी सेम एज प्लूरल दे के साथ या वी वाली, राइट, दैट्स अब देन ही डू होमवर्क, ठीक है, ही डू होमवर्क, ही डज होमवर्क, रॉन्ग हो गया ही डू होमवर्क, ही करेक्ट हो गया ही डज होमवर्क, डू नहीं आएगा, देखो करने के लिए डू आता है लेकिन हम उसका टेंस चेक करेंगे ना, टेंस भी चेक करेंगे और हम उसका केस भी चेक करेंगे, केस मतलब नाउन केस, ठीक है, नाउन नंबर एंड पर्सन, पर्सन है थर्ड, ठीक है, केस है प्लूरल नहीं है सिंगुलर, सो सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर का वर्ब लगाओगे विच इज डज, ना कि डू, दैट मीन्स डू वर्ब होता है करने के लिए, उसका ही तो राइट वर्ब यूज होगा डज, यानी डज यूज होगा फॉर व्हाट, क्योंकि ही जो है ना हमारा सिंगुलर वर्ब है, राइट, ही सिंगुलर वर्ब है इसलिए ही के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा डज, ठीक है, दिस, एंड उसके बाद क्या होगा, आई हैज ए पेन, आई हैज ए पेन का मतलब क्या होगा, आई हैज ए पेन का मतलब होगा कि मेरे पास पेन है, देखो ये वही कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है, आई सिंगुलर लोगे, सिंगुलर होता है वन है, ठीक है, हैज सिंगुलर के साथ हैज आना चाहिए, बट ग्रामर का एक्सेप्शनल रूल है आई एंड यू आर कंसिडर्ड एज प्लूरल, प्लूरल, और प्लूरल के साथ आप यूज करोगे हैव, डियर हैव, राइट, ना कि हैज, ठीक है, तो ये इसलिए यूज नहीं होगा, राइट, दिस इज हाउ, राइट, दिस, एंड उसके बाद आपका आ जाएगा शी आर रीडिंग का मतलब क्या हुआ, राइट, शी तो थर्ड पर्सन है,
शी थर्ड पर्सन है, चेक करो, राइट। और शी थर्ड पर्सन होने के साथ नंबर में क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आर कैसे आ जाएगा, सिंगुलर है तो आर क्यों आएगा, आर नहीं आएगा, राइट। क्या आएगा, रेदर शी इज, सिंगुलर के साथ इज आएगा, ठीक है। तो दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स। लेकिन एक बार के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वी हैव जस्ट चेक्ड आउट सम ऑफ द बेसिक सेंटेंस, जिसमें आई और यू इज द मोस्ट एक्सेप्शनल वन। आई और यू आप नोट कर लो अपने नोट्स में भी, आई और यू आर कंसिडर्ड एज एन प्लूरल as per the grammar rule exceptions, ठीक है। this is how then comes up dear, fill in the blanks na, fill in the blanks with the correct verbs, okay। she, first one, she dash goes to school every day, बताओ she के साथ go आएगा या goes आएगा, yes goes आएगा, क्यों, क्योंकि she जो होता है सिंगुलर होता है हमारा, राइट, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो उसके साथ goes आएगा, ठीक है, अभी बताया था, ओके। दिस वन इज राइट। दे प्लेज क्रिकेट इन द पार्क, प्ले आएगा, प्लूरल है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज आएगा, सिंगुलर है। वी was were happy yesterday, वर आएगा। he have completed the task, has आएगा, इसमें has आएगा, ठीक है, has क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, has आएगा, has, ठीक है। दिस सिंपल है। she के साथ सिंगुलर वर्ब goes, they के साथ प्लूरल वर्ब play, the sun के साथ rise is सिंगुलर वर्ब, राइट, and we के साथ were और he के साथ has, ठीक है, ओके, ठीक है। so these are the questions on the basis of which we have just practiced for the same, right। then comes up one more, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब। देखो उसमें फिलिंग करना था, यहाँ आइडेंटिफाई। देखो दो ही काइंड ऑफ के क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी टॉपिक में, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई और सेकंड इज टू अप्लाई, ठीक है। आइडेंटिफाई और अप्लाई दोनों का केस एक एक होता है, जिसको हमें प्रॉपरली करना होता है, राइट। शी इज ए डांसर, शी इज ए डांसर। अब बताओ, डांसर की बात हो रही है और ये पूछ रहा है वर्ब, बताओ वर्ब कौन सा है। डांस करना वर्ब है, लेकिन यहाँ तो डांस नहीं हो रहा है ना, तो डांसर हो रहा है, तो यहाँ पे इज हो रहा है। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ओके। दे रन फास्ट, रन हो गया वर्ब, फास्ट हो गया एडवर्ब, रन हो गया क्या, मेन वर्ब, ठीक है, जो हमारा मेन वर्ब, मेन एक्टिविटी होती है, बताया था एग्जाम्पल में भी था, राइट। दिस ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड ये भी आपका फिनिश जो है ना, फिनिश ये भी मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब। और हैज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है मेन वर्ब, ठीक है, मेन, ठीक है। द बेबी क्राइड का मतलब हो गया बेबी क्राइड, ये आपकी कौन सी वाली है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इंट्रांजिटिव है ना, राइट। शी रोट ए लेटर, इसमें लिखा क्या बताया गया है ना, दैट्स हाउ, ये रोट जो हो गया ना, रोट ये हो गया ट्रांजिटिव, जहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं नीड होती है वो इंट्रांजिटिव, ठीक है। जहाँ पे आपका सपोर्टिंग में आता है वो हेल्पिंग वर्ब, जहाँ मेन में आता है मेन वर्ब, और जहाँ लाइकवाइज ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, दैट मीन्स ये आपका लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब, राइट, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है आपके सब्जेक्ट को आपके किससे, आपके ऑब्जेक्ट से, ठीक है। he has finished his work, ठीक है। so these are the exercises on the basis of the earlier
topics or the slides we have covered like with the kind of verbs, है ना. So kind of verbs जितने भी हमने किए थे उनके बेसिस पे हमने जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स किए थे उसके बेसिस पे. ठीक है, थोड़ा सा और है प्रैक्टिस पार्ट, चलो चेक करते हैं. ये है फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बेसिस पे. ठीक है, इसमें क्या करना है, गो का हमने तो पढ़ाया ही था. गो का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट. ठीक है, और ये गोन हो जाता है. ठीक है, ईट का एट हो जाता है, ईटिन हो जाता है, ईटिन, ई टेन. ये ई लर्निंग के बेस पे होता है, राइट. रोट हो जाता है राइट का, राइट रिटिन हो जाता है, रिटिन क्या, रिटिन. ठीक है, प्ले का प्लेड. ये कौन से हो गए, ये हो गए रेगुलर वर्ब्स प्लेड वाले और वो इरेगुलर. ठीक है, सी का सी, सी का सौ हो जाता है एंड सीन हो जाता है. ठीक है, ये भी इरेगुलर वर्ब है. ठीक है, इरेगुलर. और रेगुलर में केवल प्लेड है जिसमें ईडी ईडीएल होता है, दोनों में ईडीएल होता है. ठीक है, दिस इज हाउ. और विच एवर वर्ड्स आर लाइक वर्ब आर लाइक वाइज, जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारा नथिंग इज देयर. दैट मीन्स वी हैव प्रैक्टिस इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. सबसे पहले हमने रिविजन किए दैट वर्ब क्या होता है, वर्ब कैसा होता है, क्या यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है. देन काइंड्स ऑफ वर्ब्स कितने होते हैं, 5 होते हैं विद द एग्जांपल्स, डेफिनेशंस एंड यूसेज वी हैव अंडरस्टूड देम. ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की फॉर्म्स किए हैं, वर्ब के फॉर्म्स, राइट. वर्ब के फॉर्म्स कौन कौन से बेसिस पे होते हैं, टिप्स क्या थी, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस हमारी बहुत कंडीशंस draws us to use subject and verb as per their numbers and person and case, right. This is how. Then common confusions जो हमें कभी कभी हो जाते हैं उसका पार्ट था, right. Practice, then practicing of the right form of verb singular or plural के base पे. Then identify the verbs, that means which kind of 5 type of verbs what we have studied इसमें से कौन सा था. Then change the form of the verb of some words on the basis of what, on the basis of regular and irregular verb words. ठीक है students, so with this help of slide, last slide we have covered all of our verb topic as well for you. ठीक है, where we have shared all of the tips and tricks from basic to advanced. We have covered with all of the grammar rules, exceptional rules, definitions, understandings, relations, comparisons, connections. ठीक है, on the basis of same we have covered whole of the part of speech, main topic which is verb, which is the main reason to happen any sentence. ठीक है, so this is how. So with this help we will cover up all of those verb slides, right. We have covered in the revision series for you 3 topics. First, in the part of speech itself, in grammatical concepts, noun, pronoun and verb, right. We will come up with adjective and adverb and more to more topics one by one, right. But you need to do one promise to me. You need to solve out all of those practice questions in this slide, then solve at least 10 to 15 papers, not papers, questions with yourself. ठीक है, सो ये करने के बाद ही आपको आइडिया होगा कि ओके आपका राइट लाइक आपका प्रैक्टिस कैसा हुआ है, आपको अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई है, राइट. एंड उसके बाद आप वो पेपर सॉल्व आउट करके उसके बाद आप कमेंट्स में अपना कमेंट पुट करोगे पेस्ट दैट यस. अगर यस है दैट मीन्स आपको आ गया है. डाउट्स हैं तो आप अपना डाउट पुट करोगे दैट दिस टॉपिक, दिस स्लाइड, this question, this definition, this example I have not got. I am having little confusion, doubt, issue. ठीक है, problem and understanding. ठीक है, this is okay. So sorry. So with the help of this, right, so sorry, all practice part with this slide we have covered up this verb slide as well, right. Now 2 instructions. First, do follow our YouTube channel. There are multiple videos of PYQ series and this revision series are there. First thing,
आपका लास्ट पार्ट चल रहा है प्रिपरेशंस का, so you need to follow, right? आप फॉलो करो, उसको चेकआउट करो, ऑल ऑफ द हेल्प्स व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, और अगर रिक्वायर्ड होगा हम उसके लिए डाउट सेशंस क्रिएट कर देंगे, राइट? आप यू फॉलो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है? उसके लिए फॉलो करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट ज़रूर करो, ठीक है? कमेंट करने से आपका आंसर्स हमें मिलेंगे दैट ओके स्टूडेंट्स को किस पार्ट में प्रॉब्लम है या कौन सा पार्ट उन्हें अच्छे से समझ में आया है, राइट? और हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपकी हेल्प कर सकते हैं विद द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। आप अगर करोगे कि सर किसी टॉपिक का और रिविजन्स करने हैं, हम उसको भी कर सकते हैं, राइट? बट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम आपको देना पड़ेगा, राइट? वी कैन क्रिएट सम स्लाइड्स फॉर यू, ठीक है? बट द थिंग इज दिस, आप वन बाय वन हमारे मेथड से फॉलो करो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फॉलो द चैनल, बिकॉज इट इज ए टेक्निकल ट्रेनिंग पार्ट, राइट? हम एक मेथड से आपको पुट अप कर रहे हैं, वन बाय वन स्लाइड ऑफ रिविजन सीरीज एंड वन पेपर, दोनों को साथ में करोगे एज पर द ट्रेनर्स सजेशन, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, राइट? लिमिटेड टाइम, मल्टीपल रिविजन्स करने, कंप्लीट रिविजन्स, रैपिड रिविजन्स करने और कंप्लीट आई मीन 2 to 3 रिविजन्स भी करने हैं, ठीक है? तो दिस इज हाउ आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्ट ला सकते हो अपनी प्रिपरेशन से। दैट्स वाई वी आर गाइडिंग यू इन दिस वे कि आप एक बार स्लाइड को करो, रिवीजन स्लाइड को, फिर 10 to 15 क्वेश्चंस करो, उसके बाद सेम डे में एक प्रैक्टिस पेपर का जो हम कराते हैं सॉल्यूशंस वो करो हमारे साथ, फिर एक खुद से करो पेपर। दिस वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू रिवाइज इट अप विद द टॉपिक बेस्ड, राइट? एंड अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर लो, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज और डाउट्स जो होते हैं उनको नोट कर लो, न्यू वर्ड्स जितने मिलते हैं उनको वोकैबुलरी पार्ट में ऐड कर लो, एंड देन यू विल कम अप विद नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स ओवर देयर, और वो वर्ड्स आप रेगुलरली गो थ्रू करते रहो, तब आपको आ पाते हैं, राइट? ओके, so I understand and hope that you have understood this verb topic as well as similar to noun and pronoun in a good manner, right? So with this we are wrapping it up this video, and I again say to you, please subscribe, follow, like, share and comment on our channel, right? We will be available with more helpful videos in this series and the practice paper series as well, right? Till then, take care, all the best for your preparations, hope have a good time, right? Thank you so much, bye.